السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ لال گلاب اور وہ جنزادی کی پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ سلطانہ بیگم جو کہ ماریا کی والدہ ہیں، گھر میں ایک جعلی عامل کو لے آئیں جو کہ دھوکے سے روپے پیسے اور کپڑوں کے ٹکڑے بال لے کر جا رہا تھا۔ وہ بال ماریا اور اس کی والدہ کے تھے۔ وہ کالا جادو کرنے والا تھا اور ماریا اور دادی نے موقع پر پہنچ کر اس کو یہ عمل کرنے سے روک لیا۔ پھر ماریا کو کمرے میں نظر آیا ایک سرخ گلاب۔ کیا ہوا آگے؟ چلیے سنتے ہیں۔ سلطانہ، یہ بال تم نے یقیناً دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں۔ دادی کو افسوس ہوا تھا۔ اماں، میں نے جو کیا اپنے بچوں کے لیے کیا، میں ان کو یوں نہیں دیکھ سکتی۔ تم ماں ہو تو میں بھی دادی ہوں۔ ارے یہ سارے بچے میرے بیٹے کے ہیں اور بہو اصل سے یہاں سود پیارا ہوتا ہے۔ تم جلدی کے چکر میں گھر کو برباد تو مت کرو۔ نور صاحب سے اس آدمی کا کیا مقابلہ؟ کہاں وہ گلاب کی بھینی مہک اور کہاں یہ بدعمال کرنے والا انسان؟ سغرا کل آئے گی تو اسے پہلے فرصت میں باہر کا راستہ دکھاتی ہوں۔ اماں، آئندہ دھیان رکھوں گی، لیکن ماریا تمہارے کمرے میں؟ سلطانہ بیگم نے بے چینی سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کچھ نہیں اماں، وہی سرخ گلاب ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بیزاری سے بولی۔ یہ تو اب جیسے معمول کا حصہ بن گیا ہے۔ 11 بجنے تک ایک ایک سیکنڈ سائم کو اپنی انگلیوں پر گننا پڑا تھا۔ 11 بجتے ہی گلاس ڈور کھلا اور عثمان صاحب کے ساتھ عامر اندر داخل ہوا۔ عامر لپک کر ان کے پاس پہنچا تھا۔ آپ نے اس دن وہ بات کیوں کی تھی؟ سائم نے ان سے پوچھا۔ عثمان صاحب حیرت سے اپنے راستے میں آئے ہوئے لڑکے کو دیکھنے لگے۔ یہ کون پاگل تھا جو ان کی راہ میں آیا تھا؟ مجھے بتائیں، آپ نے اس دن وہ بات کیوں کی تھی؟ سارم غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ برخودار، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عثمان صاحب اپنی عادت کے برخلاف خاصے تحمل سے بولے تھے۔ سارم کا خون رگوں میں ابلنے لگا تھا۔ عامر نے آگے بڑھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ سارم نے چونک کر اسے دیکھا۔ لہو جماتا ہوا کوئی عجیب سا احساس ہوا تھا۔ میرے خیال سے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ اس کی آواز میں گو کہ نرمی تھی، لیکن اس کا لہجہ سارم کو اس کے لہجے نے عجیب سے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ سارم، ہٹو سامنے سے۔ عثمان صاحب ہمارے معزز کسٹمر ہیں، تحمل رکھو، صبر رکھو، عزت کرو ان کی۔ کمال صاحب درمیان میں آئے تھے۔ نہیں ابا، آج میں جان کر رہوں گا۔ سارم قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ لڑکے، عثمان صاحب کی آواز میں کچھ تو تھا کہ سارم چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی تاب اس میں نہیں تھی۔ وہ بے ساختہ ہی پل کے جھپک کر رہ گیا۔ کمال صاحب، ہم غیب کا علم نہیں رکھتے، لیکن جو کچھ آپ کے ہاں ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ تو جانتے ہیں۔ عثمان صاحب کے لہجے میں مخصوص قسم کی گرج تھی۔ آپ بچے کی گستاخی معاف کریں اور ہماری رہنمائی کیجیے۔ کمال صاحب معذرت خانہ انداز میں بولے۔ دیکھیں، ہمیں یہ سب بتانے کی اجازت نہیں ہے، ہماری بھی کچھ حدود ہیں۔ آپ کو بس اتنا بتانا کافی ہے کہ جس بندے کو آپ نے مدد کے لیے پکارا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وسیلہ بنائے گا۔ عثمان صاحب سنجیدگی سے بولے۔ ٹھیک ہے، کمال صاحب نے سر ہلایا۔ آپ ہماری دنیا سے نہیں ہیں نا؟ سارم چیخ کر بولا۔ سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ تم انسان واقعی بہت ذہین ہوتے ہو۔ عثمان صاحب بڑبڑائے تھے۔ مطلب؟ کمال صاحب چوکے۔ آج کے بعد پھر ہم کبھی نہیں ملیں گے۔ عثمان صاحب بس بولے جا رہے تھے۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب، اس کی طرف سے آپ بالکل برا نہ مانیں، آپ ہمارے معزز ہیں۔ کمال صاحب نے شائستگی سے معذرت کی تھی۔ کوئی بات نہیں، عثمان یہ کہہ کر پلٹے تھے۔ کمال صاحب بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئے۔ ثانیہ گھر تو آ چکی تھی، لیکن اس کا دم نکلا جا رہا تھا۔ سائم نہ جانے کہاں تھا، اس کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ سائم، کہاں رہ گئے ہو تم؟ ثانیہ رو دینے والے انداز میں بولی۔ اچانک تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ہوا کے زور سے پردہ ہلا تھا۔ ثانیہ چونک کر تیزی سے اٹھ کر کھڑکی کی جانب آئی۔ باہر اندھیرا تھا اور اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں درخت تیز ہوا سے جھوم رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آندھی آنے والی ہے۔ ثانیہ کا خون رگوں میں جمنے لگا۔ وہ وضو کے لیے اٹھی تھی۔ واش روم کا دروازہ چر چر کی آواز کے ساتھ کھلا تھا۔ شاید بہت دنوں بعد ہوا ہے نا، اس لیے ثانیہ نے خوف کم کرنے کی کوشش کی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے واش بیسن کا نل بند کیا۔ کھلا دروازہ بنا کسی آواز کے ساتھ اس کی پشت یعنی کمر پر بند ہوا تھا۔ ثانیہ چونک کر پلٹی۔ یہ کیسے بند ہوا؟ گھر تو بند تھا، پھر بنا کسی ہوا کے دروازہ کیسے بند ہوا؟ وہ آگے بڑھی اور ہینڈل پہ ہاتھ رکھا۔ دروازہ زور لگانے کے باوجود اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا۔
सानिया ने एक बार फिर कोशिश की। दरवाजा उसी तरह अपनी जगह पर बंद रहा। कौन है? बाहर कौन है? जिसने दरवाजा बंद किया है? वो खौफ से चिल्लाई, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। सानिया का चीख चीख के गला बैठा जा चुका था। दरवाजा अपनी जगह मजबूती से बंद था और लॉक भी अंदर की तरफ से था। सानिया के वजूद में एक तेज सनसनीखेज लहर दौड़ गई। उसने आंखें बंद करते हुए झटके से दरवाजा खोला और सीधा बाहर की जानिब दौड़ लगाई थी। छोटे से लाउंज में साइम खड़ा हुआ था। साइम, मुझे नहीं पता, लेकिन कसम से दरवाजा बंद हुआ था। मैं सच कह रही हूँ, सानिया रो देने वाले अंदाज में बोली। क्या सानिया, अब तुम अपने घर जाने के लिए इस तरह की हरकतें करोगी? तुमने मैके जाना है तो जाओ, ये झूठ ना बोलो। साइम झुंझुलाए हुए अंदाज में बोला और सोफे पर बैठ चुका था। आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? सानिया ने बेयकीनी से पूछा। ये वही साइम था ना जो उसकी आंखों से देखता और कानों से सुनता था। सो अब क्या हुआ? देखो सानिया, हर बात को अना का मसला बनाना ठीक नहीं है। मसला मारिया के साथ है। तुम क्यों डरा रही हो? साइम ने उसका हाथ थामते हुए कहा। मुझे क्या लगी है किसी को डराने की? मेरी अपनी डर डर कर जान निकली हुई है। सानिया उसका हाथ झटकते हुए बोली। प्लीज सानिया, खत्म करो ये मजाक और मुझे एक कप चाय बना दो। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। साइम जैसे आजिज होकर बोला था। सानिया उसके अंदाज पर लब भेजते सर हिलाते हुए किचन की जानिब बढ़ गई थी। उसे अब अपने तौर पर कुछ करना पड़ेगा। क्या हरकत थी ये सारिम? कमाल साहब ने घर आते ही उसकी क्लास लगाई थी। बाबा, वो उस्मान साहब, जो कुछ हमारे घर में हो रहा है, मारिया के साथ हो रहा है, सब जानते हैं, तो बताते क्यों नहीं? सारिम भी फड़फड़ा था। फरहाना बेगम ने हैरत से उसका हाइपर होना देखा था, वरना सारिम तो बड़े ठंडे दिमाग का बच्चा था। तुम एक ही बात को सर पर सवार करके बैठ गए हो सारिम। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था जिस पर तुम उनकी यूं अदालत लगाते हो। बाबा, ऐसे कोई कुछ नहीं कहता। मैं पता लगाकर रहूंगा आखिर उनका कहने का मकसद क्या था। सारिम जिद्दी अंदाज में बोला। ठीक है, करो सब अपनी। पहले वो एक बड़ा था, पीछे अब तुम भी खड़े हो जाओ। कमाल साहब उसे सुनाते हुए वहां से चले गए थे। पीछे सारिम ने अपना सर पकड़ लिया था। मारिया ने भाई और बाप को घर आता देखकर फौरन ही लाइट बंद की और खिड़की के पास आ खड़ी हुई। वो जानती थी दादी सुल्ताना बेगम के कारनामे की खबर उन्हें जरूर देंगी, लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही कमाल साहब सारिम पे बरसना शुरू हो गए थे। मारिया सर झटकते हुए बेड की जानिब बढ़ी थी। साइड टेबल पे पड़ा सुर्ख गुलाब नीम तारीकी में दहक रहा था और कमरे में भीनी भीनी सी महक फैली हुई थी। मारिया तारीकी में खड़ी पहले तो चंद लम्हे उस गुलाब को घूरती रही, फिर कुछ सोचकर साइड टेबल की जानिब बढ़ी। निचली दराज में से मोमबत्ती का एक पैकेट निकाला। एक मोमबत्ती को उसने आग दिखाई। सफेद मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर अब नारंगी शोला भड़क रहा था और पहलू में सुर्ख गुलाब दहक रहा था। मारिया के हवासों पे गुलाब की महक छाने लगी। उसने मोमबत्ती को टेबल पर रखा और सुर्ख गुलाब को सीधे हाथ में थाम लिया। चंद लम्हे वो बेहद नफरत के आलम में उस फूल को घूरती रही और फिर उसे मोमबत्ती से उठते शोले की जद में कर दिया। नारंगी शोला सुर्ख गुलाब की आंच पाते ही आतिश फिशा सा हुआ, लेकिन अगले ही पल मारिया ने अपनी जिंदगी का एक और अजीब और गरीब मंजर देखा। गुलाब की एक पत्ती भी नहीं जली थी। यूं लग रहा था जैसे मोमबत्ती की आंच सुर्ख गुलाब को मजीद दहका रही थी। उफ खुदाया! मारिया ने वहां से उस फूल को उठाया और अलमारी के खाने में फेंक दिया, जहां उससे पहले कई गुलाब मौजूद थे। सारिम अपने कमरे में आते ही शॉवर लेने चला गया था। वापस आने के बाद उसने तौलिए से बाल रगड़ने के बाद उसे वहीं नजदीक के सोफे पर लापरवाही से उछाल दिया। ये तो बुरी बात है दोस्त। किसी की मानूस सी नरम आवाज कानों में पड़ी तो वो चौंक उठा। सारिम ने मिनट के पहले सेकंड में तेजी से पलटकर देखा था। तुम? बेयकीनी से उस शख्स को देख रहा था। वो उसके घर में कैसे आ सकता था? हाँ मैं। क्या मेरा आना बुरा लगा? तुम आमिर हो ना? यहाँ कैसे पहुंचे? हम कहीं भी और कभी भी आ सकते हैं। जैसा कि तुम जान गए हो कि हम तुम में से नहीं हैं, तो फिर क्या हुआ? हम भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने किसी को नूर से और किसी को खाक से तो किसी को आग से बनाया है। हम आतिशी मखलूक हैं, यानी कौम जिन्नात से ताल्लुक़ रखते हैं। आमिर ने ठहर ठहर कर अपना तारुफ करवाया। क्या? सारिम का पूरा वजूद सनसना उठा था। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। निगाहें खौफ के मारे आमिर का तवाफ कर रही थी, जिसने अपनी निगाहें झुका रखी थी। तुम? सारिम के हलक में कांटे उगाए थे। डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इतने सालों से तुम्हारे पास आ रहे हैं,
इतना तो यकीन करो। पर सारिम तो अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकला था। उसके कमरे में एक जिन था जो रात के उस पहर सिर्फ उससे बातें करने आया था। सारिम सुन होते दिमाग के साथ आमिर की बातें सुन रहा था, जो वो अपनी धुन में कहे जा रहा था कि दुनिया हर मखलूक की है और हर एक का इस पर हक है, लेकिन अफसोस तुम इंसान कभी कभी ज्यादती कर जाते हो। मतलब? अरे तुम खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आमिर ने उसकी जानिब नहीं देखा, लेकिन उसे पता चल गया था कि सारिम उल्टे पांव बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। ये नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सारिम बड़बड़ाता हुआ आमिर से जितना दूर जा सकता था वो उससे होते हुए बैठ गया दूर। तुम्हारी बहन ने भी तकलीफ पहुंचाई है, जिसकी वजह से तुम सब ये सब भुगत रहे हो। आमिर उसे बैठता देखकर दोबारा बोलना शुरू हुआ तो वो चौंक उठा। मेरी बहन ने क्या किया है? सारिम ने सरसराहट भरे लहजे में पूछा। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, माफ करना। हर कौम और हर मखलूक पर्दा रखना चाहती है। आमिर ने सहूलत से मना किया था, फिर हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? तुम्हें लगता है पीछे छुड़ाना इतना आसान है? ये करीब करीब नामुमकिन है। आमिर ने सर उठाते हुए कहा। सारिम को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा, तो फिर वो बेहद खौफ से उसे देख रहा था। मैं नहीं जानता आज भी यहाँ मैं इसलिए आया हूँ, बल्कि मुझे इजाजत ही इसलिए दी गई है कि तुम्हें बता सकूं कि हमारी भी कुछ हदें हैं, वरना तुमने आज बाबा के साथ बहुत बदतमीजी की थी। आमिर की आवाज में रंज उतर आया था। अगर तुम्हारी भी कुछ हुदूद हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम इंसानों को अधूरी बात बताकर परेशान करो? हमने तुम्हें सिर्फ खबरदार किया था और अब भी मैं तुम्हें खबरदार करने के लिए भेजा गया हूँ। नूरुल्लाह साहब, उन पर भरोसा रखो। अब मुझे चलना चाहिए। अगर तुम चाहो तो हम फिर मिल सकते हैं, बस दिल से याद करना। आमिर वही पुराने नरम लहजे में कह रहा था। तुम वापस कैसे जाओगे? सारिम ने कुछ इश्तियाक से पूछा था और अजीब पागलपन वाला सवाल था। मेरे ख्याल से दोस्त, तुम चीजों को उनके दुरुस्त मुकाम पर रखने की आदत डालो। क्या तुम टॉवल को उसकी असली जगह पर नहीं रखोगे? ओ हाँ, सारिम ने शर्मिंदा होकर कहा। उसने स्टैंड पर टॉवल रख दिया था। वो जैसे ही वापस आया तो कमरा खाली था, तो वो चला गया। सारिम अपनी पेशानी पर हाथ रखते हुए बड़बड़ाया। उसका माथा बेहद तेजी से गर्म हो रहा था। सुबह फजर पड़ने के बाद सुल्ताना बेगम धोने वाले कपड़े उठाकर पिछले सहन की जानिब आई थी, जहां पूरे घर के बरक्स सीमेंट का पुख्ता फर्श था और दीवार पर पीला सा बल्ब रोशन था। वो अपनी ही धुन में चलती हुई वॉशिंग मशीन की जानिब बढ़ रही थी कि अचानक ही उन्हें चौंक कर ठहर जाना पड़ा। खून की मोटी मोटी बूंदें पुख्ता सीमेंट के फर्श पर पीले बल्ब की रोशनी में अजीब हैबतनाक से तासुर पेश कर रही थी। सुल्ताना बेगम ने झुककर उन खून के धब्बों को देखा। खून के धब्बों का सिलसिला कोने पे बने बाथरूम के दरवाजे पर जाकर खत्म हो रहा था। कोई बिल्ली शायद जख्मी हो। सुल्ताना बेगम ने सोचते हुए दरवाजा खोला। अक्सर मासी बाथरूम का दरवाजा खुला ही छोड़ जाती थी तो बिल्लियों के ऐश हो जाया करते थे, लेकिन अभी बाथरूम खाली पड़ा हुआ था। सुल्ताना बेगम कुछ पल खड़ी सोचती रही और फिर सर झटक कर मशीन की जानिब बढ़ी। हाथ बढ़ा के उसका कवर हटाया, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें अपना हाथ पीछे करना पड़ा। मुर्गे के दो पंजे वॉशिंग मशीन के अंदर मुंह चढ़ा रहे थे। सुल्ताना बेगम कपड़े वहीं फेंकते हुए फौरन अंदर की जानिब दौड़ी थी। अम्मा, वो सीधा सास के पास गई थी जो सूरह अल बकरा की तिलावत में मशगूल थी। उनके चेहरे की उड़ी रंगत, माथे पे चमकता पसीना और हाथों की कपकपाहट फरहाना बेगम को चौंका गई। क्या बात है सुल्ताना? अम्मा हाँफते कांपते सुल्ताना से सारा वाकया सुनना चाह रही थी। वाकया सुनने के बाद दादो ने सर पकड़ लिया। और दिखाओ काले इन वालों को घर का रास्ता। उन्हें गुस्सा आ गया था। मतलब? सुल्ताना बेगम ने बौखलाकर उन्हें देखा। ये खून की बूंदें, मुर्गी के पंजे काले जादू की अलामत है सुल्ताना। अगली मुसीबतें क्या कम थी जो अब ये काला जादू भी गले पड़ गया है। फरहाना बेगम रूहानसी हो चुकी थी। सुल्ताना बेगम बेदम सी हो गई और उनके पास बैठी बैठी उनकी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा उनको मिलेगी, यही सोच रही थी। अम्मा, मुझे माफ कर दें प्लीज। सुल्ताना बेगम ने सास के आगे हाथ जोड़े थे। सुल्ताना, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे इस तरह कर देने से क्या मुसीबत टल जाएगी? दादो उनके हाथ थामते हुए संजीदगी से बोली थी। फिर सुल्ताना ने परेशानी से पूछा। देखो, कमाल से बात करती हूँ। एक काम करते हैं अम्मा, फर्श तो मैं धुलवा के साफ करवा दूंगी, पंजे किसी बहते पानी में भिगवा देते हैं। सुल्ताना बेगम कुछ होश में आना शुरू हो चुकी थी। ठीक है, उन्हें किसी कपड़े के थैले में डाल दो।
सड़क पार करके जो नाला है वहाँ डाल आते हैं, इससे पहले कि मजीद देर हो जाए। हम जाएंगे क्या? सुल्ताना ने हैरानगी से पूछा। ना तो और कौन जाएगा? पता नहीं कौन सा अमल फूका हो उन पर। बड़ों से सुनते आए हैं ऐसी चीज़ों को हमेशा बहते पानी में डालना चाहिए। दादों ने समझाया। क्या अम्मा, किसे डालना है? कमाल साहब ने अंदर आते हुए पूछा। अरे कमाल मियाँ, सारी मुसीबतें साथ चली आ रही हैं। अब तो जादू का चक्कर भी शुरू हो गया है। यहाँ बैठ के ज़रा सुकून से मेरी बात सुनो। फरहाना बेगम की बात सुनकर सुल्ताना के चेहरे का रंग उड़ गया। वो शौहर के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। क्या मतलब अम्मा, ये कैसे हुआ? कमाल साहब कुछ हैरत कुछ परेशानी से बोले थे। बस बेटा क्या कहूँ, ये हमारी मासी सुगरा है ना, वो उठाकर किसी आमिल को ले आई। मुँह चढ़ी थी ना, इसलिए बिना पूछे मांगे शुरू हो गई। फरहाना बेगम कहते हुए बहू को साफ बचा गई। सुल्ताना ने तशक्कुर भरा सांस लिया था। फरहाना बेगम जैसी वज़ादार और समझदार खातून से उन्हें यही उम्मीद थी और उनके निबाह की वजह भी यही थी। वो शॉपर मुझे दे दीजिए, समंदर में डाल के आऊँगा। और सुल्ताना, सारिम को उठा के तैयार करो, नूर साहब थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। कमाल साहब हिदायत देते हुए उठे थे। शुक्र अल्लाह का, नूर अल्लाह साहब को फुर्सत तो मिली। फरहाना बेगम के दिल का बोझ हल्का हुआ। सानिया चूँकि साइम से नाराज थी, सो अपनी तरफ से बातचीत मुकम्मल बंद थी। अभी वो फूले फूले मुंह के साथ किचन में नाश्ता बनाने आई थी। लाउंज में टीवी देखते साइम को उसने साफ नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन किचन में आते ही उसके तो होश उड़ गए। काउंटर पर टांगे लटकाए वही बच्ची मज़े से बैठी थी, मौके फाड़े उस बच्ची को देख रही थी। तुम? सानिया के कदम वहीं जम गए। हेलो आंटी। बच्ची के चेहरे पर बड़ी दोस्ताना मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखें, उफ, उसकी आंखों से जैसे स्याह दायरे निकलते हुए सानिया को जकड़ रहे थे। वो उसको अपने बस में कर रही थी। सानिया के वजूद में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। क्या कर रही हो यहाँ? क्या कर रही हो तुम? अंदर कैसे आई? सानिया दरवाजे से लगते हुए बोली थी। ऐसे कहते हुए वो बच्ची अगले ही पल किचन की सलाखों वाली खिड़की से बाहर निकली थी। सानिया के मुंह से एक बेसाख्ता चीख बरामद हुई। आंखें फैल गई थी और दिल की धड़कन तेजी से बढ़ी थी। दूर से किसी के कदमों की चाप की तेज आवाज आ रही थी। डर गई क्या? वो बच्ची सलाखों से झांकते हुए उसके चेहरे के तासुरात के मजे ले रही थी। उसके चेहरे पर हंसी थी और आंखों की चमक। सानिया को यूं लगा जैसे कोई उसका दिल मुट्ठी में लेकर मसल रहा था। आज मिठाई नहीं खाऊंगी आंटी, मैं तो सिर्फ आपको डराने, ओह मेरा मतलब है मिलने आई थी। वो मुंह पर हाथ रखते हुए सरगोशी में बोली थी। उसके लहजे की सरसराहट सानिया का खून रगों में जमा गई थी। अगले ही पल वो होशो हवास से बेगानी होकर फर्श पर जा गिरी। बच्ची कुछ पल उससे घूरती रही। हासिदी, बेवकूफ, अपने घर वालों की दुश्मन कहकर फजा में बुलंद हो गई। कौन है ये बच्ची जो बार बार सानिया के सामने आ रही है? क्यों उसे डरा रही है? क्यों उसे धमका रही है? क्या उसका ताल्लुक उसी जिन्नात के खानदान से है? आमिर आखिर क्या कहना चाहता है सारिम से? किस तरह मसला होगा हल? कैसे मारिया का पूरा खानदान बचेगा जिन्नात के पूरे कबीले से? ये जानने के लिए आखिरी किस्त जरूर देखिएगा।